اکابر علماء کرام کی سرپرستی میں اور ان کے دعاؤں کے ساتھ شہر میسور میں اپنا کام کا آغاز کیا ہے۔ شروع دن سے حضرات علماء کرام اور ہمارے مشرق و مربی اساتذہ کرام کی سرپرستی اس ادارے کو شروع دن سے رہی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور جو بھی ہے اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ 10 سال کے عرصے میں 25 طلباء الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ادارے سے حفظ کی تکمیل مکمل کیے ہیں۔ 25 نہیں 24 اور آج کے جو طالب علم حفظ ختم کریں گے ان کا شمار 25واں ہے۔ تو 25 طلباء 10 سال کے عرصے میں حفظ کی تکمیل اس ادارے سے کیے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے کرم سے اس ادارے کا آغاز بھی فرمایا اور اس ادارے کے ضروریات کا بھی اللہ رب العالمین نے اپنے غیب سے انتظام فرمایا۔ اچھے مشفق اساتذہ کرام بھی ملے، محنتی اساتذہ کرام بھی اس ادارے کو اللہ رب العالمین نے مہیا فرمایا، اور ساتھ ہی بہترین ذمہ دار اور دن و رات اس ادارے کے ترقی کے لیے جد و جہد کرنے والے ذمہ دار احباب کو بھی اور ساتھیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور ان تمام کی محنتوں کی کوشش ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے اس ادارے کو شہر میں خدمت قرآن کے اس جو صف میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں ایک چھوٹا بن کر اس لیے ادارہ بھی آج کھڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ 10 سال کا عرصہ مدرسے ابی بن کعب نے پورا کیا، اور اس 10 سال کے عرصے میں بہت سے حالات بھی آئے، جگہیں بھی بہت سے تبدیل ہوئے۔ مسجد ابراہیم میں جو بنی مٹک میں ہے وہاں پر اس ادارے کا آغاز ہوا، وہاں چند سال اس ادارے نے خوب ترقی کی۔ 2 سال پہلے کرونا کی وجہ سے جو ساری دنیا میں حالات آئے، ادارے چلنا اور چلانا مشکل ہو گیا۔ ایسے وقت میں بھی الحمدللہ یہ ادارہ کسی طرح اپنے کام کو جاری رکھا ہے، اس کی تعلیم کو جاری رکھا۔ 2 سال میں پوری طرح یہ ادارہ جو ہے انکنٹرول ہم کہہ سکتے ہیں اس حالت سے گزرا کے لیے انتظام کرنا ہے۔ اس پر غور و فکر ہوئے، بہت ساری باتیں آپس میں گفتگو ہوئی ہے، مشورے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ حفظ کے طلباء اسکول کی تعلیم کے ساتھ حفظ کی تعلیم دی جائے، حفظ کی تکمیل کرائی جائے اسکول کی تعلیم کے ساتھ۔ پورے مکمل جو اسکول کی تعلیم ہے صبح سے لے کر شام تک، اس کے علاوہ جو وقت ہے صبح اور شام میں 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے ترتیبیں بنائی گئی، اس کے لیے کوششیں ہوئی ہیں، اور اس درمیان میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے میرے دوست اور میرے ہر کام میں ساتھ رہنے والے جناب سید کامران صاحب، وہ بھی اسی دینی فکر کے ساتھ امت میں ایک تو تعلیمی بیداری لانا، یہ بھی ان کا مقصد، ساتھ ساتھ دینی ماحول میں ان کو فراہم کرنے کے وہ بھی جد و جہد میں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا اس عرصے میں ہوا، تو ان کے ساتھ بھی مشورے ہوئے، وہ بھی اس سلسلے میں مکمل اپنے مشورے دیے۔ پھر الحمدللہ اللہ کا نام لے کر جو ایلیجنٹ انٹرنیشنل اسکول جو بند ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا اور پوری طرح یہ ادارہ آگے پیچھے ہو گیا تھا، تو اس کے بعد اس کو ٹیک اوور کیا گیا اور یہاں پر حفظ کی تعلیم کے ساتھ اسکول کو شروع کیا گیا۔ حکومتوں کی طرف سے آئے آنے والے قوانین کے پیش نظر اور پھر اسلامی تعلیمات کے اوپر دنیاوی تعلیمات کے غلبے کے پیش نظر، جہاں سرکار کی طرف سے نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کے اوپر گویا حاوی ہونے کی ایک سازش اور ایک منصوبہ بند کوشش، اسی کے نتیجے میں ہمارے شہر میسور بلکہ ضلع میسور کے اندر یہ وہ پہلا مدرسہ ہے جو
स्कूल के अंदर तैयार किया है या स्कूल ने इसको अपने अंदर इस तरह के साथ शामिल किया है, ये आने वाले दिनों के अंदर इसकी अहमियत का पता चलेगा मदारिस इस्लामिया वालों के लिए भी और स्कूल वालों के लिए भी, जिनके पास दीन गैरत और अहमियत होती है अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराने के लिए। और स्कूल के जिम्मेदार अहबाब जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन का दाढ़िया रखा है, नबी की तालीम का शौक रखा है, वो आने वाले दिनों में इन मदारिस इस्लामिया की तालीम को अपने स्कूलों के अंदर लेकर आना कितना जरूरी है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। कितनी मुबारकबाद दी जाए, कितना इस पर फख्र किया जाए, कितना इसको बयान किया जाए, कितना इस पर एजाज दिया जाए, जितना भी किया जाए कम ही कम है। सबसे बड़ा एजाज तो ये है कि अल्लाह ने अपने कलाम के लिए इनको मुंतखब कर लिया। अजीज भाइयों, ये फख्र मुसलमानों को है। मुसलमान आज गए गुजरे हो सकते हैं, माली एतबार से कमजोर है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई शीट के मकान में रहता है, कोई किराए का मकान में रहता है, और कोई कहीं कोई वैसा कोई ऐसा कोई वैसा। लेकिन अल्लाह ने अगर उसको कुरान के लिए, इल्म कुरान के लिए, हिफ्ज़ कुरान के लिए, अमल कुरान के लिए मुंतखब कर लिया है तो यकीनन वो अल्लाह के नजदीक सबसे बुलंद मर्तबे वाला है। हदीस में क्या आया, वो मकानात जिन मकानात में कुरान पाक की तिलावत की जाती है, उन मकानात में मकान भी है, ये मदरसा उबई इब्न काब भी है, वो मसाजिद भी है, और दुनिया में फैले हुए सब मदरसे हैं। जिस जगह पर कुरान पाक की तिलावत सुबह से शाम तक होती है, फरमाया वो मकानात जहाँ कुरान पाक की तिलावत की जाती है, आसमान से देखा जाए, फरिश्ते इस पर नजर डालें, अल्लाह की नूरानी मखलूक इस पर नजर डाले, तो इन मकानात की छतों से वो चमकते हुए, दमकते हुए, रोशनी देते हुए वैसे नजर आते हैं जैसे जमीन पर खड़े हुए लोगों के लिए आसमान के सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। अंदाजा लगाइए वो बड़े बड़ी बिल्डिंगें जिन पर इंसान फख्र करता है, अगर वहां कुरान नहीं पढ़ा जाता, और यकीनन बहुत से ऐसे लाखों मकानात बिल्डिंगें हैं जहां कुरान नहीं पढ़ा जाता, चाहे वो कुफ्र की वजह से हो, किसी और की वजह से हो, वो बिल्कुल नहीं चमकते। और वो घर जो झोपड़ी का है, मामूली सा मकान है, छोटा सा मकान है, वो मदरसा जो शीट के साथ बना हुआ है, वो मस्जिद जो शीट के साथ बनी हुई है, अगर वहां से तिलावत कुरान पाक की आवाज आती है, वहां तिलावत की जाती है, मदरसा उबई इब्न काब फजर होती है, इशा तक कुरान पाक की तिलावत की जाती है, आसमान में फरिश्तों के लिए वैसा चमकता है जैसा हमको हमारा ये आसमान चमकता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। अब आप इस वक्त में छोटे हैं, कल के आप और के आप ही मुस्तक़बिल, आप और के लिए उलमा भी आप ही हैं, और के तारीफ भी आप ही हैं। अल्लाह ताला पता नहीं आप में से कौन आगे चलकर क्या बनने वाला है, किससे अल्लाह तबारक व तआला उम्मत का कौन सा काम लेने वाले हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दो काम भी आप साथ साथ कर रहे हैं। हालांकि कुरान करीम को हिफ्ज़ करना ये कोई मामूली बात नहीं है। बच्चे 24 घंटे मदरसे में रहते हैं, उसमें 10-12 घंटे अपना वक्त लगाकर भी मुश्किल हिफ्ज़ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जबकि वो बिल्कुल माहौल के अंदर रहते हैं। आप मुस्तक़िलन यहाँ पर एक तो मदरसे की तालीम भी है, हिफ्ज़ के साथ साथ स्कूल की तालीम भी है, फिर घर का माहौल भी है, स्कूल का माहौल भी है। तो आपको बहुत बचकर भी चलना है, बहुत हिम्मत के साथ भी चलना है। आप बिल्कुल अपने वक्त को ज़ाया ना करें। वालेकुम हज़रत, आज वालिदैन में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम की एक, जैसे कि मौलाना अयूब अंसारी साहब ने फरमाया, उस तरह की एक फ़िक्र थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मदरसे उबई इब्न काब पिछले कई सालों से सो अभी आप एलिगेंट स्कूल से भी क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, मतलब दीनी और असरी तालीम को एक मजमूए के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं?
आप जानते हैं कि आए दिन जो है NEP के नाम पर और नई तालीमी पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर पूरा निज़ाम तालीम को दरम बरम करने की फ़िक्र शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और मदारिस को धीरे धीरे जो मजबूत नहीं है, छोटे छोटे मदारिस, उसको सबको ख़त्म करने की पूरी साजिश हो चुकी है। जी जी। ऐसे मौके पर अगर हम पहले से तैयार नहीं हुए और पहले से हम अपने लिए एक ऐसा निज़ाम तैयार नहीं करें कि जिसमें बच्चा कुरान के साथ हिफ्ज़ करने का भी निज़ाम हो, तो फिर बहुत सारे बच्चे जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो कुरान से महरूम हो जाते हैं। जी। तो वही एक फ़िक्र थी हमारे कामरान भाई जो रीजनल इंस्टीट्यूशन कब से 11 स्कूल चलाते हैं मैसूर में, उनकी भी एक फ़िक्र थी और हमारी भी एक फ़िक्र, मदरसे की लाइन से हमारी फ़िक्र थी, स्कूल की लाइन से उनकी फ़िक्र, दोनों को मिलकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। और जो हमारे जो ज़िम्मेदार है बेंगलुरु के खुसूसन अलहाज गयासुद्दीन साहब हैं, उनके पूरे बरादरान हैं, उनकी भी एक फ़िक्र थी है कि हमें कोई ऐसा निज़ाम बनाना जिसमें बच्चे स्कूल के तालीम के साथ आसानी के साथ हिफ्ज़ बना लें। मुस्तकिल 2-2.5 साल जो कोरोना के अयाम में हम मुस्तकिल इसी पर काम किए, रिसर्च किए, कई मदारिस गए, बड़ी जगह इस तरह के चल रहे वहाँ गए और देखे कि किस तरह बच्चों को तालीम आसानी के साथ दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम तब्दीली में लाते हुए बहुत सारा ऐसा निज़ाम लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कि बच्चा आसानी के साथ बच्चा रोज़ाना आधा सफ़ा एक सफ़ा कुरान सुना रहा है। अच्छा। तो 3 साल आमतौर से एवरेज है हिफ्ज़ कुरान का, हम 5-6 साल रखें, लेकिन 3rd या 4th में दाखिला लेते और 8th या 9th में बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, इस तरह का हमारा निज़ाम है। तो उसके एक पहली कड़ी जो है हमारा ये तालिब इल्म है मोहम्मद शरीफ, उनके वालिद साहब यहाँ पर हैं, इनकी एक कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह एक जो एक नमूना हो सकता है क्या एक जहन में था ना, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। क्योंकि और भी बच्चे हैं जो 1.5 महीने में 3-3 पारे हिफ्ज़ कर लिए, 2 तो 3-3 बार मुकम्मल स्कूल के साथ 9:30 से 3:30 तक पूरे बच्चे स्कूल में रहते हैं और सुबह 1.5 घंटा, शाम में 1 घंटा, सिर्फ 2.5 घंटा जो है वो हिफ्ज़ की तालीम में लगे रहते हैं। तो मौजूदा हालात में जिस तरह की एक फ़िक्र थी जी। दीनी तर्ज को लेकर हमारे बच्चों को खुसूसी तौर पर, तो एक तरह से आपने प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कोशिश की है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पहल में आज हाफिज़ कुरान हमारे सामने नजर भी आ रहा है। बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं जी। जैसे हमारा खुदा स्कूल है वो भी इस लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारी ये है कि हम स्कूल और मदरसा दो में से किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा। स्कूल मुकम्मल तालीम दे रहे हैं और मदरसा भी मुकम्मल पढ़ा रहे हैं। यानी एक ही काविश, दोनों एक छत के नीचे दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं। बोर्ड हमारा जी। मदरसा उबई इब्न काब भी एलिजेंट इंटरनेशनल स्कूल, दोनों हमारा एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा तो यहाँ मदरसा भी है और सर स्कूल। औकात क्या है आपके स्कूल की? सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। अच्छा, मुस्तकिल सुबह 8 से रात शाम 8 बजे तक। अच्छा। स्कूल का जो निज़ाम है वो 9 साढ़े 9 से 3:30 तक है। अच्छा। जो हिफ्ज़ करना चाहते हैं या दीनी तालीम में आना चाहते हैं उनके लिए ये सहूलत है। उसमें दोपहर में खाने का नज़्म है यहाँ पर, और स्कूल के बाद उनके ट्यूशन का नोट्स कंप्लीट कराने का, होमवर्क का भी मुस्तकिल टीचरों के ज़रिए वो भी हो जाता है। असर के बाद खेलने का भी उनको मौका यहाँ फराम है, और फिर मगरिब के बाद फिर उनके लिए अच्छा, वालिदैन का कैसा रुझान है? मतलब माशाल्लाह वालिदैन की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं। हमें क्या आगते पढ़ाते चले थे, लेकिन वालिदैन बच्चों को तैयार करना, भेजना, और माशाल्लाह आपके मुस्तकिल कॉन्सेप्ट में आप जो एक रूफ में दीनी और दुनियावी तालीम को लेकर चल रहे हैं उसमें जो इस वक्त 35 तलबा हैं, जी पूरे तलबा जो है बहुत खुश भी हैं और वालिदैन का मुकम्मल ताउन भी है उसमें, माशाल्लाह। वरना हम ये काम कर ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। आपका नाम बताइए। मेरा नाम यकीनुल्लाह शरीफ करवा। बाकी आप काबिल मुबारकबाद हैं, जिस तरह हजरत ने कहा जी शुक्रिया। असतिज़ा की काविश उस वक्त तक मुमकिन नहीं होती जब तक कि वालिदैन खुद आगे बढ़ते। बिल्कुल सही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मदरसे उबई इब्न काब में आपका जो बच्चा आज हाफिज़ कुरान बना है, जी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा पहले से भी मेरा इरादा था। जी। मेरे ख़ानदान में एक बहुत बड़े आलिम थे, जी। मरहूम हैं जी। अहमद शरीफ हज़रत करको, अहमद शरीफ हज़रत रशादी उन्होंने, और उनके जो अमीर शरीयत थे अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी जी और उनके बेटे माज जी। रशादी थे, उनके बेटे डबल डिग्री किए थे और उसके साथ में हिफ्ज़ भी किए थे और आलिम कोर्स भी किए थे। अच्छा। उनको देखने के बाद में जब भी मुझे अभी बच्चा नहीं था मेरे पास, जब भी मुझे देखकर एक दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी जैसा माज हज़रत थे वो भी मरहूम हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनको देखकर जो है मेरे जहन में भी वही बात आई। इसके बाद में पहले मैं अपने बहन के बेटे को मदरसे में दाखिल किया गर्गेश्वरी में,
फिर वो बच्चा सो आप करकेश्वरी से हैं? जी नहीं, मैं HD कोटे से हूँ, मूरबंद मेरा गांव का नाम है, जी, आपका नाम क्या बताएं? यकीनुल्लाह शरीफ मेरा नाम है। बिल्कुल। फिर मैं हमारे बच्चे को हाफिज़ और आलिम बनाया, मेरे बहन के बेटे क्या को। उम्र है बच्चे की आपकी? ये बच्चे को मेरा बेटा है मोहम्मद शरीफ है, जी, अंडलस में 4th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था ये। अच्छा। मेरे जहन में आया कि मैं हिफ्स को डालूँ उसको, 3 साल हिफ्स होने के बाद में फिर से मैं उसको स्कूल में डालूँ, बिल्कुल। दोनों मिलाकर डिग्री भी हो जाए, इधर हाफिज़ आलिम भी हो जाए, कौम का भी कुछ भला हो जाए, ये सोचकर मैंने पूरे मदरसे तलाश किए मैसूर के अंदर। फिर से वो हज़रत अब्दुल मजीद साहब के जी, मदरसे खुला। हज़रत मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाए, हर बच्चा कौम का हाफिज़ बन सकता है, दुनियावी तालीम के साथ हाफिज़ बन सकता है। इस बात को बहुत एक आधा घंटा बिठाकर मुझे समझाया। बिल्कुल। इसके बाद मैंने आंडल स्कूल में आपके जाकर दिल में अरमान भी वही था? अरमान भी वही हज़रत ने थी, वही रहनुमाई हज़रत भी फरमाई? वही, हज़रत के अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। जी, आप आज हज़रत उलमा कराम और अपने वालिद के चेहरे पर एक अजीब खुशी दिखाई दी, जी, क्योंकि आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र 12 साल। 12 साल। 12 साल में अल्लाह ताला ने आपको वो इनाम बख्शा है जिसका सहरा कल आपके वालिदैन को भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? अब हिफ्स के बाद दौड़ करना चाहता हूँ। माशाल्लाह। तो दौड़ के यहाँ पे एलिगेंट स्कूल भी है, मतलब मदरसा और स्कूल दोनों है, तो आप दुनियाई तालीम में भी इंटरेस्ट जी, रखते हैं? जी, तो क्या बनना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में? मेरा ये है कि कारी बनना चाहता हूँ, आलिम बनना चाहेंगे? आलिम कारी। जी माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे आपको। आमीन। शुक्रिया सर। जी। अस्सलामुअलैकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। शहर मैसूर में कई सालों से एक वालिदैन में एक बात देखी जा रही थी, ऐसे मदारिस की ज़रूरत पे बहुत ही फ़िक्र जताई जा रही थी कि क्यों ना हम अपने बच्चों को असली और दीनी तालीम दोनों फराहम करें। वैसे तो शहर मैसूर में कई ऐसे मदारिस मौजूद हैं जहाँ पे दीनी और असली तालीम दी जा रही है। मेरे साथ जो खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ साहब जो हैं, उनकी उम्र 12 साल है, ये हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। अच्छा, वाकई तमाम शहर मैसूर के लिए एक बाइस खुशी की बात है कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान बन चुका है। मैंने इनसे बात की, इनके वालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनके चेहरे से खुशी से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इस बच्चे की जो हाफिज़ बनने की जो ये सादत है उनके वालिद के चेहरे पर आया हो रही है। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।